वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई। आज कौन सा होना है? टेक्स्ट 38 नहीं? जी जी। चलो स्टार्ट करते हैं। जी जी जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 चलो मैं पढ़ता हूँ। हाँ। जी। संप्रद संप्रदिश्य वमजनो जनानां परमेष्ठिनम् पश्यतस्य तद्रूपमात्मनो न्यरूढ़धरिः। हम्म। संप्रदि संप्रदिश्य मजनो जनानां परमेष्ठिनः पश्य तस्य तद रूप मात्मनो निरूणद धरी। जी। Translation. Shukdev Goswami said to Maharaja Parikshit, the Supreme Personality of God, Hari, after being seen in his transcendental form, instructing Brahmaji, the leader of living entities, disappeared. In this verse, it is clearly mentioned that the Lord is Ajana, or Supreme Person, and that he was showing his transcendental form, Atmano Rupam, to Brahmaji, while instructing him in the summarization of Srimad Bhagavatam in 4 verses. He is Ajan, or the Supreme Person amongst Jananam, or all persons. All living entities are individual persons. And amongst all such persons, Lord Hari is supreme, as confirmed in Shruti mantra Nityo Nityanam Chetanas Chetananam.
So there is no other place. So there is no place for impersonal features in the transcendental world, as there are impersonal features in the material world. Whenever there is chetana or knowledge, the personal feature comes in. In the spiritual world, everything is full of knowledge, and therefore everything in transcendental world, the land, the water, the tree, the mountain, the river, the man, animal, the bird, everything is of the same quality, namely chetana, and therefore everything there is individual and personal. Srimad Bhagavatam gives us this information as the supreme Vedic literature, and it was personally instructed by Supreme Personality of Godhead to Brahmaji, so that the leader of living entities might broadcast the message to all the universe in order to teach the supreme knowledge of Bhakti Yoga. Brahmaji in his turn instructed Narad, his beloved son, the same message of Srimad Bhagavatam. And Narad in his turn taught the same to Vyasadeva, who again taught it to Shukdev Goswami. Through Shukdev Goswami's grace and by the mercy of Maharaja Parikshit, we are all given Srimad Bhagavatam personally to learn the science of absolute personality of Godhead, Lord Shri Krishna. यहाँ पे एक चीज बड़ा गजब की बता रहे हैं, ये यहाँ पे अब देखो, कोई वो तो नहीं क्या की, and therefore everything in the transcendental world, मतलब that means spiritual world, and the water, the trees, the mountains, the rivers, the man, the animal, the bird, everything is of the same quality, namely चेतना, मतलब हर चीज में चेतना है. जीजा जी, चेतना का मतलब यहाँ आत्मा वाले अंश का मतलब है ना? हाँ, कॉन्शियसनेस या चेतना जो जो हम लोगों के अंदर, मतलब चेतना इज स्लाइटली लोअर देन क्या नाम है, स्पिरिट सोल. अच्छा. हाँ, मतलब मेरे को लगता है क्या नाम है, चेतना जैसा ना हमारे बॉडी जो है, अभी हाथ पैर चल रहे हैं, पैर आप हिला सकते हैं, है ना, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, हाँ हाँ ये चेतना है जी. अब ये चेतना और स्पिरिट सोल भी क्या नाम है, मतलब स्पिरिट सोल की वजह से जब तक बॉडी में स्पिरिट सोल है तब तक बॉडी एक्टिव है, क्योंकि बिल्कुल. सोल का मतलब ही एक्शन एक्टिविटी है. जैसे ही आप स्पिरिट सोल को बॉडी से निकाल दोगे, बॉडी इज डेड. हाँ बिल्कुल. नहीं हो सकता. तो ये जो चेतना का मतलब यही है. अभी तक ये वाला भी जरा थोड़ा समझने की जरूरत. जी. नित्यानाम चेतना चेतना नाम, ये जरा कहीं समझ के समझेंगे. कल है ये आता है, बहुत है, आज वरुण है नहीं लग रहा है. जी. तो ये जरा सा थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे. जी. यहाँ पर जो मेन चीज जो है ना, सुखदेव गोस्वामी सेड टू महाराजा परीक्षित, द सुप्रीम हरि आफ्टर बीइंग सीन इन द ट्रांसेंडेंटल फॉर्म इंस्ट्रक्टेड ब्रह्माजी द लीडर ऑफ द लिविंग एंटिटीज डिसअपीयर्ड. अब यहाँ पे अजाना अजाना यहाँ पे कहीं पे आया, संप्रदेय जनाना, अजानो, हाँ आया हुआ है ना ये अजानो के नाम. ये श्री श्री शुकवाच संप्रदिश्या फुल्ली इंस्ट्रक्टेड ब्रह्मा जी एवं 10 अजाना. अजाना द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, वो अजाना का मतलब ही है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है. और अजाना का मतलब ये इन्होंने यहाँ पर यही बताया है, मानुष मतलब कि हर आदमियों से सबसे ऊपर, समथिंग लाइक दैट. जिया जी, जैसे हम लोग हैं, पहले एक बार जन्म लेते हैं, पूरा जीवन जीते हैं, फिर मृत्यु हो जाती, फिर जन्म लेते हैं, लेकिन भगवान जो है वो अजन्मे, वो हमेशा ही हैं. उनके साथ ऐसा नहीं जिया जी कि पहले वो जन्म लेते फिर जीवन शरीर धारण नहीं करते, मतलब मटेरियल शरीर धारण नहीं करते हैं. जी. और धारण करते भी हैं जीजा जी, तो वो किसी गर्भ के थ्रू धारण नहीं करते हैं. हम लोग के थ्रू धारण करते हैं ना जी. हाँ बिल्कुल, यस 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 एब्सोल्युटली. ये सब चीजें भी आगे भी आएंगी में, ये है सही, ठीक है ना. तो ठीक है, अजन्म का मतलब यही है क्या नाम, कि वो अजन्मा है. अजन्मा है मतलब यही मतलब होगा अजन्म, है ना जी. 639 अंत हृदय अंत हृतेन्द्रियार्य हरये विहितांजलि सर्वभूतमयो विश्वम ससज्जेर्दम सपूर्ववत्. जी.
अंतर्हितेन्द्रिय यथार्थ हरे गीतांजलि सर्वभूतमयो विश्वम सर्वेदम स पूर्ववत। जी। एक मिनट। हम्म Translation. On the disappearance of the Supreme Personality of Godhead, Hari, who is object of transcendental enjoyment, for the senses of devotees, Brahma, with folded hands, began to recreate the universe with living entities as it was previously. अच्छा, चूंकि कल्प खत्म हुआ है ना, तो वो अब दोबारा क्रिएट कर रहे हैं. The Supreme Personality of Godhead, Hari, is the object for fulfilling the sense of all living entities, illusioned by the glaring reflection of the external energy. The living entities worship the senses instead of engaging them properly in fully fulfilling the desires of the Supreme. Illusioned by the glaring reflection of the external energy. ठीक है. In the Hari Bhakti Sudhodaya 13.2, there is the following verse. No phalam tvadrasya darshananam hi tano phalam tvadarsh gatra sangha jihva phalam tvadarsh kirtanam hi sududarva bhagavata hi loke. O devotee of the Lord, the purpose of visual sense is fulfilled simply by seeing you, and touch your body is the fulfillment of bodily touch. The tongue is meant for glorifying your qualities, because in this world a pure devotee of the Lord is very difficult to find. Cha. O devotee of the Lord. Okay. Originally, the senses of the living entities were awarded for the purpose, namely, to engage them in the transcendental loving service of the Lord or that of his devotees. But the conditioned souls, illusioned by the material energy, became captivated by sense enjoyment. Therefore, the whole process of God consciousness is meant to rectify the conditional activities of the senses and to re-engage them in the direct service of the Lord. Lord Brahma thus engaged his senses in the Lord by recreating the conditioned living entities to act in the recreated universe. This material universe is thus created and annihilated by the will of the Lord. It is created to give the conditioned soul a chance to act, to return home back to Godhead. And servants like Brahmaji, Naradji, Vyasji, and their company become busy with the same purpose of the Lord, to reclaim the conditioned souls from the fold of sense gratification and return them to the normal stage of engaging the senses in the service of the Lord. Instead of doing so, that is converting the action of the senses, the impersonalists began to make the conditioned souls senseless, and the Lord also senseless. That is the improper treatment for the conditioned souls, है ना? वो उनके भाई सेंसेस को डिनाई करो आप. और लॉर्ड में भी कोई सेंसेस नहीं है, मतलब वो एक वॉइड में घुस जाओ आप, मतलब. When there is some disease in the eyes, नहीं यदि एक सेंटेंस छूट गया. छूट गया, that is the proper treatment for the conditioned soul. The diseased condition of the senses may be treated by curing the defect, but not uprooting the senses altogether. When there is some disease in the eyes may be cured to see properly. Plucking out the eyes is no treatment. Similarly, the whole material disease is based on the process of sense gratification. Liberation from the disease condition is re-engagement of the senses to see the beauty of the Lord, hear his glories, and act on his account. Thus, Brahmaji created
the universe activities again. हम्म। तो इसमें तो बहुत सारी चीजें बताई हैं भाई, है ना? फिर इसमें जो मेन चीज थी वो उन्होंने ये बताया है कि जो मनुष्य शरीर है और इसमें जितने भी सेंसेस हैं उनको भगवान ने एक पर्पस के लिए बनाया है। जिस पर्पस के लिए बनाया है उसको उतना आप यूज करिए। और बाकी जो जी इसमें जितनी भी चीजें हैं वो कोई भी यूजलेस नहीं है। बस उनको हमें कहाँ पे लगाना है ये हमें ध्यान रखना है। करेक्ट। हमारी सेंसेस हैं इनका भगवान ने पर्पस है। उनको क्या देखना है, क्या सुनना है, क्या महसूस करना है, जिसका जो भगवान ने पर्पस बनाया है उसमें उनको भगवान की उसमें लगाइए, ना कि सांसारिक चीजों में लगाइए। हाँ हाँ। और रजिया जी इसमें जो अब इन्होंने वो बताया है कि सेंसेस को मतलब हटा देना, ये चीज इसका कोई मतलब नहीं है, ये गलत चीज है। हाँ, वो बिल्कुल तुमने, यू हैव रीट्रेटेड, बिल्कुल जी जी। बढ़िया तुमने और भैया जी बल्कि जो चीजें हम लोग को गलत भी लगती है ना, जैसे हम लोगों ने जैसे जी जी मैंने ये पढ़ा है कि जो मनुष्य के अंदर सेक्सुअल डिजायर्स होती हैं वो भी बताया। इतनी गलत नहीं होती हैं। यही जी ये जब प्योरीफाई हो जाती है तो यही भक्ति के रूप में बदल जाती है। तो करेक्ट। भगवान ने जितनी भी चीजें बनाई हैं वो सब बहुत अच्छी हैं। उनका पर्पस हम नहीं समझ पा रहे हैं और हमको हम्म समझ के वो जिस उद्देश्य के लिए बनाई गई हैं उसमें लगाना चाहिए। बस सिंपल। यहाँ पर जो ये श्लोक इन्होंने रेफर किया है वही गॉड या उसके रिप्रेजेंटेटिव डिवोटी के लिए ये प्रेयर है। जी जी जी। Devotee of the बिल्कुल। Lord, the हाँ। purpose of the visual senses is fulfilled simply by seeing you, हम्म है ना? एंड द टू टच योर बॉडी, मतलब हम्म डिवोटी इसके लिए ही क्रम है। भगवान को तो आप टच तभी देखो ना, व्हेन यू डू दिस, देन जब लोग ये पुजारी या जो भी लोग पूजा करते हैं आर्च विग्रह की, जी। तो देन हम्म। दे स्टार्ट हैविंग, मतलब अगर ये प्योर प्योर भक्ति में वो फिर ये सब करते हैं, है ना? बिल्कुल। है ना? हम्म। तब प्योर बिल्कुल भक्ति में मतलब वो दे डू इट फॉर द आर्च विग्रह, है ना? बिल्कुल। जी। To touch body is the fulfillment of body touch. The tongue is meant हम्म for glorifying your qualities. फिर मतलब हम्म। प्रचारक बन जाते हैं, है ना? जी। प्रचारक बन के कर्म है, अपनी जबान का यूज इस तरह से करते हैं, बिकॉज इन द वर्ल्ड इन दिस वर्ल्ड ए प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड, है ना? हम्म। जी तो एक और हमारा है, एक और जी। लास्ट पढ़ लेता हूँ, है? जी। नेक्स्ट 40। प्रजापति धर्मपति रेकदा नियमान यमान भद्रम प्रजा नाम विच्छन्न तिष्ठत स्वार्थ काम्य यया हम्म। प्रजापतिर धर्म एकदा पति रेकदा नियमान यमान भद्रम भद्रम प्रजा प्रजानन विच्छन्न नवीन तिष्ठत स्वार्थ चक्षणार तिष्ठत स्वार्थ कामया। Translation. Thus, once upon a time, the forefather of the living entities and the father of religiousness, Lord Brahma situated himself in the acts of regulative principles, हम्म desiring self interest for the welfare of all living entities. हम्म One cannot be situated in the exalted position without having undertaken a regulative life of rules and regulation. हम्म An unrestricted life of sense gratification is animal life. हम्म And Lord Brahma, in order to teach all concerned within the jurisdiction of his generations, taught the same principles of sense control for executing higher duties. He desired the welfare of all as servants of God, and anything desiring the welfare of the members of his family and general generations must conduct a moral religious life. यहाँ पे भी बड़ी teaching है. The हम्म highest life of moral principles is to become a devotee of the Lord. हम्म Because a pure devotee of the Lord has all the good qualities of the Lord. हम्म On the other hand, one who is not a devotee of the Lord, however qualified he may be in the mundane sense of the term, cannot be qualified with any good quality worthy of the name. हम्म Pure devotee of the Lord, like Brahma,
and persons in the chain of disciplic succession do not do anything to instruct their subordinates without acting according to themselves. हम्म, अच्छा, अब यहाँ पर यही चीज बता रहे हैं कि भाई आप अगर अपने हाउस होल्ड के लीडर हैं तो इट इज प्राइम ड्यूटी टू बिकम ए डिवोटी। हम्म, अब आप रेगुलेटेड सेंस के साथ में आप भगवान की उसमें लगेंगे, और वो जो है ना, दैट इज द बिगेस्ट फॉर्म ऑफ एजुकेशन एंड लीडिंग द हाउस होल्ड, एंड दैट हम्म, ब्रह्मा जी ने जो किया जी, ये के क्रम है टू बिकम ए डिवोटी, जो जो है ना, ये बड़ी प्राइम ड्यूटी हम्म, है। जी, हाँ, ये यहाँ पे लिख दिया इन्होंने, जी, ट्रांसलेशन की है। Thus, once upon a time, the forefather of living entities and the father of religiousness, Lord Brahma, situated himself in the acts of regulative principles, हम्म, desiring self-interest for the welfare। मतलब ये सारी जो सृष्टि थी वो तो ब्रह्मा जी का परिवार हो गया ना, हम्म, तो फिर वो खुद भी कर्म है रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स के हिसाब से चल के, ही वॉज जी, हिमसेल्फ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। देन ही एक्सपेक्ट्स कि भाई सारे जो हाउस होल्डर्स एटलीस्ट जो हैं या जो भी है कर्म है, मतलब हम्म, चाहे ब्रह्मचर्य में ही है आदमी, तो जी, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स का वो करते हुए डिवोटी बना रहे, डिवोटी जी, बना, है जी। ना। नहीं, और जीजा जी एक चीज आपको और बताएं, मैं कभी कभी ये सोचती हूँ कि जो हम लोग को ब्रह्मचर्य वगैरह बताया गया है, ये सब हम्म, चीजें कितनी ब्यूटीफुल हैं। ब्यूटीफुल इन द सेंस जीजा जी कि जो लोग इन चीजों का पालन करते हैं, उनके चेहरे का आप ग्लो देखिए, उनका आचरण देखिए, तो कितना मतलब एक अंदर से कितना अच्छा महसूस होता है। तो बेसिकली बात ये है जिया जी कि जो, और जिया जी जो कंडीशन सोल्स हैं, अगर मान लीजिए हम लोग इन रूल्स को अगर पालन नहीं करते हैं जो भगवान हमें बता रहे हैं, तो उसी की वजह से तो सारी बुराइयां हैं। देखिए जिया जी, अगर सेंस ग्रेटिफिकेशन में आदमी ज्यादा लग जाता है तो एंड रिजल्ट क्या होता है? केवल डिजीज ही तो होता है। डिजीज के अलावा तो कुछ और होता नहीं है। और अगर हम ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, जिन जिन बच्चों को आप देखिए जिया जी कि बहुत कायदे से रहते हैं, ब्रह्मचर्य के साथ रहते हैं, शुद्ध विचारों के साथ रहते हैं, उनके चेहरे पे एक अलग तरह का ग्लो होता है और उनमें एक अलग अट्रैक्शन होता है। कि तो बिल्कुल यानी कि बिल्कुल भगवान ने बिल्कुल, ये ये जो है ना, क्योंकि ऐसा है ना, जी, ये वर्ण वर्ण आश्रम जो है ना, ये जी, भगवान ने बनाए थे। हम्म, इसलिए ये जो तुम कह रहे हो बिल्कुल 100% ये जी, एप्लीकेबल है जी, जी, कि ब्रह्मचर्य में कर्म है, और इसमें एक देर देर इवन गृहस्थ आश्रम में भी, जी, और वानप्रस्थ और सन्यास, ये हम्म, भगवान ने बनाए थे। इसमें देर इज ए डिग्निटी, देर इज ए जो तुमने कहा ना, ही कर्म बिकॉज सेल्फ एफल्जेंस ऑटोमेटिक हो जाता जी, है ना। जी। तो हाँ दिया जी, एक बार मैंने अपने, जब मैं बहुत यंग थी और ज्यादा चीजों को समझती नहीं थी, मैच्योर नहीं थी, मैं क्लास शायद 10th या 11th में पढ़ती थी, तो मैंने अपने पापा से बात पूछी। हमने कहा कि पापा, इंडिया में हर चीज पे इतना रिस्ट्रिक्शन क्यों है और फॉरेन में तो इतनी लिबर्टी है? तो ये जी फिर, ये जी पापा के अंदर ये था कि अगर आप कोई चीज पूछिए तो फिर वो उसका आंसर देते थे। अब आप उसको समझ पाए तो समझने की कोशिश करिए। तो हमने पापा से कहा कि पापा, यहाँ पे हर चीज पे इतना रिस्ट्रिक्शन है, ऐसे कपड़े मत पहनो, ऐसा मत करो, इतना ये मत करो, और फॉरेन वगैरह में सब इतनी लिबर्टी है। तो पापा ने हमसे कहा कि बेटा एक रियलिटी तुमको बताएं। तो हमने कहा क्या पापा? तो कहते हैं कि जब कोई भी चीज बहुत ओपन हो जाती है तो फिर उस चीज की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। और जिया जी फिर उन्होंने हमसे ये कहा कि बेटा तुमको पता है, लेडीज का जो शरीर है वो जितना छिपा रहता है उसमें इतनी ब्यूटी रहती है। और फिर उन्होंने हमसे ये भी बताया जिया जी, हमसे कहने लगे कि अब तुम लोगों को इतना मैं खुल के बता नहीं सकता हूँ, लेकिन फॉरेन वगैरह में जो इतना तुम ओपननेस देख रही हो, तो लोग उन चीजों के प्रति न्यूट्रल हो जाते हैं, और जो चीज जितनी छिपी रहती है उसमें उतनी ब्यूटी रहती है। देखो उनकी बात कितनी सच है आज की डेट में। जी, 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 आज की डेट में वेस्ट जो है बिल्कुल, और वही चीज मतलब इंडिया में जो तुमने सवाल किया था ना, जी, जी, लड़कियां उसी को के आफ्टर हैंकर कर रही हैं, और जी, बिल्कुल जो है उन्होंने जो कुछ भी उनकी डिग्निटी, जो लज्जा जिसको कहते थे, जी, जी, और जी, द रियल ब्यूटी जो है दे हैव लॉस्ट, जी, जी, जी। द और रियल ब्यूटी हैज इज लॉस्ट एक्चुअली। धीरज जी उन्होंने कहा कि अगर लेडीज इस लज्जा के साथ रहेंगी
तो उनका आगे का जीवन बहुत सौम्यतापूर्ण रहेगा, नहीं तो बहुत ही इंसल्टेड लाइफ जिएंगे, और फिर गर्ल्स को एज एन ऑब्जेक्ट लिया जाएगा, तो फिर उनकी बहुत बुरी उनका कंडीशन। जो सब आजकल जो हो रहा है एक्चुअली, जी जो जी जी, ऑब्जेक्ट की तरह ले रहे हैं, ले जबकि रहे हैं। वो लड़कियां मार इसी के लिए स्ट्रगल कर रही हैं कि भाई वी आर नॉट ऑब्जेक्ट्स, बट दे बस, देमसेल्व्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग हाँ, देमसेल्व्स ऑब्जेक्ट्स। उनको कोई एजुकेट ही नहीं कर रहा जीजा जी, कि वॉट एवर वेज दे आर अडॉप्टिंग इट इज रॉन्ग। वही देखिए, फिर भी इस्लाम में वो चीज जो है ना, उन्होंने फोर मतलब लड़कियों को वो नहीं उतना ओपन। बिल्कुल, वही चीज है जी जी। इट्स नॉट ए क्वेश्चन ऑफ एडमायरिंग इस्लाम, बट द बिल्कुल इज कि हमारे वैदिक वैदिक उसको तो कंडेम किया ना आपने, बिल्कुल। वैदिक वेज को तो कंडेम किया कि जी, हाँ ये तो बड़े रूढ़िवादी हैं, इवन जो तुम लोग हाँ, कहते हो ना कि हमारे पापा और ये तुम्हारे चाचा जी और हाँ, ये जो भी क्या नाम है ना वो, लेकिन बट देवर क्या नाम है मतलब उनकी अपब्रिंगिंग फिर भी बहुत ही ज्यादा रूटेड थी। बिल्कुल। बस ये जी एक एडवांटेज था कि हम लोग अपने फादर से जो चीज पूछते थे, वो उसको वो ओपनली फिर बता देते थे, हाँ तो फिर वो ये चीज ऐसे, इसको ऐसे समझो। और प्यार का ये मतलब होता है, इज्जत का ये मतलब होता है, डिग्निटी का ये मतलब होता है, कि जिससे ये समझ पाए जी जी कि इसको अपनी लाइफ में हम कैसे उतार पाए। जी बिल्कुल पक्का है क्या नाम है, ये जो जी तुमने कहा ना जी कि रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स और हाउस के जो हेड को किस तरह से रेगुलेटेड तरीके से रहना चाहिए, किस तरह से वो करना चाहिए, और जो तुमने ब्रह्मचर्य और उसके बारे में भी बताया वो बिल्कुल जी ऑन द डॉट है। जी। हाँ तो जी टेक्स्ट, 41 में पढ़ो। हाँ टेक्स्ट 41 आपको पढ़ना है। जी। तम नारदः प्रियतमो रिक्था दाना मनुव्रतः शुश्रूषमाणः शीलेन पश्येण दमेन च। तम नारद प्रियतमो रिक्था दान मनुव्रता शुश्रूषमाण शीलेन प्रश्रयेण दमेन च। जी। हम्म। नारद, द मोस्ट डियर ऑफ द inheritors inherited sons of Brahma, always ready to serve his father, strictly follows the instruction of his father by his mannerly behavior, meekness and self control। अब देखो यहाँ पे इन्होंने कोई परपोर्ट नहीं लिखा, बिकॉज इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि भाई नारद ने अपने पिता के चरण चिन्हों पर चले बस। हम्म मतलब नारद जी जो ब्रह्मा जी तो टोटली क्या नाम है रेगुलेटिव प्रिंसिपल प्लस डिवोशन हम्म, टू द सुप्रीम लॉर्ड, क्योंकि वो जी, तो उनकी नाभि कमल से हुए थे। और नारद हाँ, जी जो है वो अपने जो भी फादर ब्रह्मा जी के चरण चिन्हों पे चले। हम्म। हम्म। टेक्स्ट जीजा 40। जी, कितनी सरप्राइजिंग बात है कि हमारा एक बेसिक कंसेप्ट जो हम लोग की संस्कृति में था, कि जो पहले हम लोग अपने फोर फादर की रिस्पेक्ट करते थे, परिवार कितना संतुलित उसमें चलता था, और वही देखिए अब ये कंसेप्ट आ गया है कि लोग अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट नहीं करते और अपने बच्चों को इतना ज्यादा प्यार करते हैं, और फिर जो जैसा व्यवहार उन्होंने अपने माँ बाप के साथ किया, आगे चल के वही वो भी उसी व्यवहार को पाते हैं अपने बच्चों के साथ। तो एक छोटा सा कंसेप्ट है ना, उसकी वजह से जीवन कितना स्वर्ग या नर्क हो सकता है, एक कंसेप्ट की वजह से। जो पहले का था जी जी, लोग अपने माता पिता को ज्यादा प्यार करते थे, बच्चों को ही प्यार करते थे, लेकिन माता पिता के ऊपर ज्यादा ध्यान देते थे, तो उनकी लाइफ कितनी स्वर्गमय थी। और आज के जो पेरेंट्स हैं, जो यंग जनरेशन है, वो अपने माँ बाप को बिल्कुल नेग्लेक्ट करता है और अपने बच्चों को जरूरत से ज्यादा प्यार करता है, और फिर जीजा जी वही तिरस्कार उनको अपने बच्चों से मिलता है। अरे तुमने बहुत मतलब ये बिल्कुल ये दीज आर द इल्स ऑफ नॉट बीइंग एजुकेटेड इन द, तो इसका मतलब क्या होगा, पुराने टाइम में जी जो वैदिक सिस्टम जो था फिर भी काफी कुछ इम्प्लीमेंटेशन में था। बिल्कुल जॉइंट फैमिलीज थी, ओल्ड पेरेंट्स की इज्जत थी, बच्चों को वो संस्कार मिलते थे, है ना, फिर वो आगे चल के उसी तरह से चलते थे, है ना, बिल्कुल। चाचा ताऊ बड़े पापा इस टाइप की चीजों का कंसेप्ट था। हम्म। हाँ, थोड़ा सा बच्चे को टॉलरेंस भी सिखाया जाना चाहिए जी जी। हाँ वो इसमें इनबिल्ट था ना, इसमें टॉलरेंट जी होना। जी, वही चीज है जी। यस। एक्स 42। माया मायाम विविदिशन
विष्णोर मार्गशस्य महामुनि महाभागवतो राजन पितरम पर्यतोषयत्। मायां विदिशन् विष्णोर्मा येषस्य महामुनिः महाभागवतो राजन् पितरं पर्यतोषयत्। जी। Narad, very much pleased with his father and desired to know all about the energies of Vishnu, the master of all energies. For Narad was the greatest of all sages and greatest of all devotees, O king. अच्छा ये क्या है? Narad very much pleased with his father and desired to know all about the energies of Vishnu, the master of all energies. For Narad was the greatest of all sages and greatest of all devotees, O king. हाँ, तो पर समझ जी में आ गया ना, जी, है ना। फिर बता दीजिए लेकिन आप। हाँ, ऐसा है कि ना, मैं यहाँ पे ये श्लोक में कह रहे हैं कि नारद वॉज वेरी मच प्लीज्ड विद हिज फादर, मतलब हम्म फादर से तो थे ही वो इम्प्रेस्ड, क्योंकि उन्होंने भगवान के दर्शन किए थे। हम्म उनसे ये पूछा उसने भगवान की वेरियस एनर्जीज के बारे में, जहां तक मैं समझता हूँ, हालांकि परपोर्ट में हो सकता है प्रभुपाद बताएंगे। जी वेरियस एनर्जीज का ये मतलब होगा जो उनकी अंतर्गतवा शक्ति है, बहिर्गतवा शक्ति है और तटस्था जी शक्ति है। तीन जी। तरह ना, कि हम्म इंटरनल पोटेंसी और एनर्जी, एक्सटर्नल पोटेंसी और एंड मार्जिनल पोटेंसी और एनर्जी, ठीक है ना। जी उन तीनों चीजों के बारे में वो नारद जी ने पूछा कि वो, बिकॉज वो ही हिमसेल्फ वाज द ग्रेटेस्ट डिवोटीज ऑफ द हम्म सुप्रीम लॉर्ड, है ना। हम्म, जी ये ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल डिवोटीज, हाँ। जी। Purport. Lord Brahma, being the creator of all living beings in the universe, is originally the father of several well-known sons, like the Katu Sanas, चतु संस सांस। Chatu Sanas, हम्म, and Narad. In three departments of human knowledge disseminated by the Vedas, namely fruitive work, Karma Kand, transcendental knowledge, ज्ञान Gyan, कांड, Gyan Kand, and devotional service, हाँ। Upasana Kand. Devarshi Narad inherited from his father the devotional service, whereas Daksh inherited from his father fruitive work, and Sanak, Sanatana, etc. inherited from their father information about ज्ञान कांड। Gyan Kand or transcendental knowledge. But out of them all, Narad is described here as the most beloved son of Brahma because of good behavior, obedience, meekness, and readiness to render services unto father. And Narad is famous as the greatest of all sages because of his being the greatest of all devotees. Narad is the spiritual master of many famous devotees of the Lord. He is the spiritual master of प्रहलाद। Prahlad, Dhruv, Vyas, down to the forest animal hunter Kirat. His हम्म only business is to turn everyone to the transcendental loving service of the Lord. Therefore, all these features of Narad make him the dearmost son of his father, and all this is due to Narad's being a first class devotee of the Lord. The devotee are always anxious to know more and more about the Supreme Lord, the master of all energies, as confirmed in Bhagavad Gita 10.9. मत चित्ता मत गत प्राणा, वही है क्रम है आउट ऑफ ये श्लोक की मच्चित् गीता। मद गत प्राणा बोध यन्तः परस्परम कथा यन्ताज च च माम नित्यम तुष्यांति च रमन्ति च। हम्म Supreme Lord is unlimited and his energies are also unlimited. No one can know them completely. Brahmaji, being the greatest living entity within the universe and being directly instructed by the Lord, must know more than anyone within the universe, although such knowledge may not be complete. Thus, it is duty of everyone to ask about the unlimited Lord from the spiritual master in the disciplic succession of Brahma, which descends from Narad to Vyas, from Vyas to Sukdev, and so on. हम्म हम्म Hmm. तो यहाँ पर जो है ना
आप ये देखिए कि उन्होंने कई चीजें बताई हैं भाई, कि मैं जी। इतिहास के बारे में, कर्म कांड के लिए तो दक्ष थे रिस्पॉन्सिबल, उनको हम्म। आना था, है ना। ज्ञान हम्म। कांड के लिए जो है वो जो चारों सनक सनंदन सनातन इत्यादि थे, है ना। और हम्म। क्या नाम है, उपासना कांड के लिए जो थे वो देवर्षि नारद थे, है ना। तो उनका जी। उन्होंने सबको डिवोटी बनाते थे। और हम्म। और जो वो यहाँ पर ये भी कहा कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े लोगों को, जिनको कि उनको इसका उपासना का ज्ञान दिया, जैसे प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज और व्यासदेव, है ना। जी। तो ये है जी। मतलब, और ये भी कह रहे हैं कि भाई कोई भी डिवोटी के लिए वो बड़ा जरूरी है कि वो कम से कम अपने गुरु से इन चीजों के बारे में प्रॉपर सबमिसिव तरीके से ज्ञान ग्रहण करे। जी। हम्म। तुष्टम निशाम्य पितरम लोकानाम प्रपितामहम देवर्षि परिप्रच्छ भवान यन्मानु पृच्छति। पुष्टम निशाम्य पितरम लोकानां प्रपितामहं देवर्षि परिपृच्छ भवान्यन मानु पृच्छति। जी. The great sage Narad also inquired in detail from his father Brahma, the great grandfather of all the universe. After seeing him, well satisfied. हम्म। हम्म। The हम्म। purport. The process of understanding spiritual or transcendental knowledge from the realized person is not exactly like asking an ordinary question from the schoolmaster. The schoolmaster in the modern days are paid agents for giving some information, but the spiritual master is not a paid agent, nor can he impart instruction without being authorized. In the Bhagavad Gita, the process of understanding transcendental knowledge is directed as follows. तद विधि प्रणिपाते पातना प्रण परि परिप्रसन्ना या सेव्या उपादेय शांति ते ज्ञान ज्ञानम। हम्म। अच्छा। ज्ञानिनास तत्वदर्शिनाः। Arjun was advised to receive transcendental knowledge from the realized person by surrender, question, and service. Receiving transcendental knowledge is not like exchanging dollars. Such knowledge has to be received by service of the spiritual master. As Brahmaji received the knowledge directly from the Lord by satisfying him freely. Similarly, one has to receive the transcendental knowledge from the spiritual master by satisfying him. The spiritual master's satisfaction is the means of assimilating transcendental knowledge. One cannot understand transcendental knowledge by becoming a grammarian. The Vedas describe यस्य देव परा भक्तिर यथा देव तथा गुरु गुरुआ तत्तेते कथि कथिता ही अर्थाः प्रकर्षने महामनः। Only unto one who has unflinching devotion to the Lord and to the spiritual master does transcendental knowledge become automatically revealed. Swet Swarna Upanishad 6.23. Such relationship between the disciple and the spiritual master is eternal. One who is now the disciple is the next spiritual master, and one cannot be a bona fide and authorized spiritual master unless one has been strictly obedient to his spiritual master. Brahmaji, as a disciple of the Supreme Lord, received the real knowledge and imparted it to the dear disciple Narad, and similarly Narad as a spiritual master handed over his knowledge to Vyas and so on. Therefore, the so-called formal spiritual master and disciple are not facsimile of Brahma and Narad or Narad and Vyas. The relationship between Brahma and Narad is reality, while the so-called formality is the relation between the cheater and cheated. It is clearly mentioned herewith that Narad is not only well-behaved, meek and obedient, but also self-controlled. One who is not self-controlled, specifically in sex life, can become neither a disciple nor a spiritual master. One must
have disciplinary training in controlling speaking, anger, and the tongue, the mind, the belly, and the genitals. One who has controlled the particular sense mentioned above is called a Goswami. Without becoming a Goswami, one can be without becoming a Goswami, one can become neither a disciple nor a spiritual master. The so-called spiritual master without sense control is certainly the cheater, and the disciple of such a so-called spiritual master is the cheated. One should not think of Brahmaji as a dead grandfather, as we have experienced on this planet. He is the oldest great grandfather and he is still living, and Narad is also living. The age of inhabitants of Brahmlok planet is mentioned in Bhagavad Gita. The inhabitants of this small planet Earth can hardly calculate even the duration of one day of Brahma. तो ये यहाँ पर ये इन्होंने डिसाइप्लिक सक्सेशन और क्या नाम है उसकी प्यूरिटी के बारे में बताया जी हाँ कि भाई जो है बिल्कुल। हाँ हर एक आदमी नहीं गुरु बन सकता और नाइदर बिकॉज द फ्यूचर द डिसाइपल इज द फ्यूचर गुरु हाँ सो ये जो है ना उसके लिए ये सब चीजें बड़ा सेंस कंट्रोल जो है और रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट जी तो ब्रह्मा और नारद जो है वो तो फैक्ट भी है कि ब्रह्मा जी तो क्या क्या तो एक पूरा कल्प चलता है मतलब करोड़ हाँ क्या नाम है वो रहते हैं बिल्कुल अनेक भी कैन जी इमेजिन है ना जी ये बात है उनकी महिमा के बारे में भी बताया और यहाँ पर ये भी शिक्षा दी है कि भाई यू नाइदर यू चीट नॉर यू बिकम चीटेड बिल्कुल जी और ये हाँ, बात अब मैं पढ़ता हूँ है जी 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 तस्मा इदम भागवतम पुराणम दश लक्षणम प्रोक्तम भगवता प्राह प्रीतः पुत्राय भूतकृत जी तस्मा इदम भागवतम पुराणम दश लक्षणम प्रोक्तम भगवता प्राह पीता पुत्राय भूतकृत। Thereupon, the supplementary Vedic literature, Srimad Bhagavatam, which was described by the personality of Godhead and which contains 10 characteristics, was told with satisfaction by the father to his son Narad. ये बड़ा important श्लोक आया है जी कि अब ब्रह्मा जी ने वो जो भगवान ने उनको भागवतम की शिक्षा दी थी ना चतुर्श्लोकी भागवतम में उसको एक्सपैंड करना शुरू किया जो 10 कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो ये बताने जाएंगे ब्रह्मा जी नारद को purport. Although the Srimad Bhagavatam was spoken in 4 verses, it had 10 characteristics which will be explained in the next chapter. In the 4 verses, it is first said that the Lord existed before the creation, and thus the beginning of Srimad Bhagavatam includes the Vedanta aphorism Janmadaya Asya. Janmadaya Asya is the beginning. Yet the 4 verses in which it is said that the Lord is the root of everything that be beginning from the creation up to the supreme abode of Lord naturally explain the 10 characteristics. One should not misunderstand by wrong interpretation that the Lord spoke only 4 verses and that therefore all the rest of the itni 17,994 verses are useless. देखो ना मतलब भाई वो तो हर एक आदमी तो नहीं समझ सकता कि भगवान क्या है 4 वर्ष है तो ब्रह्मा जी को तो बताना पड़ेगा ना डिटेल में The 10 characteristics as will be explained in the in the next chapter require so many verses just to explain them properly. Babaji had also advised Narad previously that he should expand the idea he had heard from Brahmaji. Brahmaji had also advised Narad previously that he should expand the idea he had heard from Brahmaji. Sri Chaitanya Mahaprabhu instructed this to Srila Rupa Goswami in a nutshell. But the disciple Rupa Goswami expanded this very elaborately, and the same subject was further expanded by Jiva Goswami and even further by Sri Vishwanath Chakravarti Thakur.
we are just trying to follow in the footsteps of all these authorities. So, so Srimad Bhagavatam is not like an ordinary fiction or mundane literature. It is unlimited in strength, and however one may expand it according to one's own ability, Bhagavatam still cannot be finished by such expansion. Bhagavatam, being the sound representation of the Lord, is simultaneously explained in the 4 verses and the 4 billion verses, all the same inasmuch as the Lord is smaller than the atom and bigger than the unlimited sky. Such is the potency of Srimad Bhagavatam. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई गई है यहाँ पे. यू सी क्रम है, ये जो चीज है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताई है, क्योंकि श्रीमद् भागवतम बड़ा गुह्य ज्ञान है, और इसको जो जो लोग डिसाइप्लिक सक्सेशन में हैं वो बड़े रियलाइज्ड सोल होते हैं, तो वो अपने हिसाब से, मतलब वो रियलाइजेशन के साथ में फिर उसको उसका वो इंटरप्रिटेशन बताते हैं, बट ओनली इन डिसाइप्लिक सक्सेशन. मतलब इसीलिए जो है प्रभुपाद तक जो है डिसाइप्लिक सक्सेशन है. उसके बाद में जो बाकी जो जो लोग गुरु आए हैं, तो वो लोग भी डिसाइप्लिक सक्सेशन में हैं, उनके भी डिसाइपल. तो और यहाँ पर उन्होंने महाप्रभु का नाम लिया है कि भाई उन्होंने फिर बताया रूपा गोस्वामी को, भाई तुम जो है ये इसको करो. उन्होंने फिर उसको जो भी उन्होंने शिक्षा दी उसको उन्होंने एक्सपैंड किया. उसके बाद उनके जो जो वो थे डिसाइपल जीवा गोस्वामी, उन्होंने उसको एक्सपैंड किया. और फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती. मतलब ये समझाने की तरीका है. और बड़ा सही बात है कि जो श्रीमद् भागवतम और वेदास तो आज की डेट में बहुत ही वो अवेलेबल थोड़ी है इस समय. मतलब बहुत कहीं कुछ कुछ है, क्रम है, बट द एंटायर वेदास है वो लुप्त हो गए, डिसअपीयर्ड. इसी तरह श्रीमद् भागवतम भी जो 18,000 श्लोक जो बता रहे हैं ना, वो अब पूरी भागवतम मतलब एक तरह से नहीं है, जो वो है मतलब यही बची है बस, ये वाली 18,000 श्लोक. बिल्कुल. तो यहाँ पर जो ये बताया है ना कि चाहे वो 18,000, चाहे 4 बिलियन या जो भी है, क्या नाम है ना, टेंस ऑफ बिलियंस, तो ये सच बात बताई है यहाँ पे, है ना. ये मुझे मतलब, और यहाँ पर ये सब बता ही दिया है इन्होंने, है ना. तो नेक्स्ट पढ़ते हैं टेक्स्ट 40. नारद प्राह मुनिये सरस्वत्यास्तट तटे नृप ध्यायते ब्रह्म परमं व्यासाय मित तेजसे. नारदा प्राह मुनिये सरस्वत्यास्तटे नप ध्यायति ब्रह्म परम व्यास व्यासा यामित तेजसे. व्यासामित तेजसे. In succession, O king, the great sage Narad instructed Srimad Bhagavatam unto the unlimitedly powerful Vyasadeva, who meditated in devotional service upon the Supreme Personality of Godhead, the absolute truth on the banks of river Saraswati. अब देखो, आप समझने की कोशिश करो आप कि नारद जी को उन्होंने पता नहीं कौन 10 चीजें बताई हैं. आगे अगले चैप्टर में वो 10 चीजें क्या है पता नहीं, ऐसा ही चाहिए, है ना. और उसके बाद उन्होंने नारद जी ने वो चीज व्यासदेव जी को बताई. अब व्यासदेव है ना, वो मेडिटेट कर रहे हैं सरस्वती रिवर के बैंक पे. ये चीज 18,000 श्लोक जो व्यासदेव जी ने निकाले, वो मतलब अब कोई कहेगा यार ओरिजिनली तो भगवान ने 4 श्लोक दिए थे, अब ये क्या है, क्या नाम है, 18,000 श्लोक बना दिए हैं. बट ऐसा नहीं है. वही बात जो है, बहुत ही उन्होंने तो बड़ा मेडिटेट करके फिर ये चीज क्या नाम है दी है. यहाँ पे जो पिछले बार जो प्रपोर्ट में लिखा है ना कि जो प्रभुपाद ने श्रीमद् भागवतम बीइंग द साउंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉर्ड इज साइमल्टेनियसली एक्सप्लेन्ड इन द 4 verses and 4 billion verses, all the same, in as much as the Lord is smaller than the atom and bigger than the unlimited sky. Such is the potency of Srimad Bhagavatam. इसको बड़ा हमें मतलब, that is why it is not just a book. Bhagavad Gita is also not just a book, है ना. it's a दिव्य ज्ञान है ये. बिल्कुल बिल्कुल जी. ट्रांसलेशन ये मैंने पढ़ दिया. हाँ, ये मैंने पढ़ दिया ट्रांसलेशन.
Purport. In the 5th chapter of the first canto of Srimad Bhagavatam, Narad instructed the great sage Vyasadeva as follows. अथो महाभाग भवान अमोघ दृक् शुचि श्रवः सत्यरतो धृतव्रत उरुक्रमस्याखिल बंध मुक्तये समाधिना सुमर तद विचेति सिताम. O greatly fortunate, pious philosopher, your name and fame are universal, and you are fixed in absolute truth, with spotless character and infallible vision. I ask you to meditate upon the activities of the personality of Godhead, whose activities are unparalleled. ये किसको ब्रह्मा जी ने कहा है? व्यासदेव को. है नारद इंस्ट्रक्टर. ये कैंटो 1 में जो है नारद ने व्यासदेव को. बिल्कुल सही है ना जी. So in the disciplic succession of the Brahma Sampradaya, the practice of yoga meditation is not neglected, but because of the devotees are bhakti yogis, they do not undertake the trouble to meditate upon the impersonal Brahman as indicated here. They meditate on Brahma Paramam or Supreme Brahman. Brahman realization begins from the impersonal effulgence, but with further progress of such meditation, manifestation of the Supreme Soul, Paramatma, परमात्मा रियलाइजेशन. परमात्मा रियलाइजेशन टेक्स प्लेस. एंड मतलब यहाँ पर ये है जो क्या है ना, जो ब्रह्मन जो एफल्जेंस है ना, वो तो सुप्रीम पर्सनालिटी गॉडहेड का वो उनका पर्सनल ग्लो है. तो उसी में चकाचौंध हो जाता है और उसके आगे जो है जा ही नहीं पाता है. भगवान को पर्सनल फॉर्म को देख ही नहीं पाता है. बिल्कुल है ना. जैसे आप समझ रहे हैं. And progressive further realization of the supreme personality of Godhead is fixed. मतलब ये लोग जो है ना वो वहां तक पहुंच जाते हैं. तो जो लोग डिवोटीज हैं ना, जो डिवोटीज हैं, दे कैन गो बियॉन्ड द पर्सनल एफल्जेंस. और इम्पर्सनलिस्ट वगैरह तो वहीं पे भटक के रह जाते हैं. Narad Muni, as the spiritual master of Vyasdev, knew very well the position of Vyasdev, and thus he certified the qualities of Srila Vyasdev as fixed in the absolute truth with great vow, etc. Narad advised meditation upon the transcendental activities of the Lord. Impersonal Brahman has no activities, but the personality of Godhead has many activities. है ना. And all such activities are transcendental without any tinge of material quality. If the activities of the Supreme Brahman were material activities, then Narad would not have advised Vyasadeva to meditate upon them. Param Brahman is Lord Krishna, as confirmed in the Bhagavad Gita. In the 10th chapter of Bhagavad Gita, when Arjun realized the factual position of Lord Krishna, he addressed the Lord in the following verse. परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुस्त्वाम रस्यः सर्वे देवर्षिर्नारद तथा असितो देवालो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि में. Arjuna summarized the purpose of Bhagavad Gita by his realization of Lord Krishna and thus said, My dear personality of Godhead, you are the supreme absolute truth, the original person in the eternal form of bliss and knowledge. And this is confirmed by Narad, Asita, Deva and Vyasadeva. And above all, your personal self has also confirmed it. Bhagavad Gita 10.12 and 13. When Vyasadeva fixed his mind in meditation, he did it in Bhakti Yoga trance and actually saw the Supreme Person with Maya, the three energy in contraception. As we have discussed before, the Lord's Maya or illusion is also a representation because Maya has no existence without the Lord. Darkness is not independent of light.
Without light, no one can experience the contraception of darkness. However, this Maya or illusion cannot overcome the Supreme Personality of Godhead but stands apart from him. Apashrayam. Therefore, perfection of meditation is realization of the personality of Godhead along with his transcendental activities. Meditation on impersonal Brahman is the troublesome business for the meditator, as confirmed in Bhagavad Gita 12.1, 12.5. क्लेशो धृतरास तेषाम अविक्तासा चेतसाम, है ना। तो ये यहाँ पर जो है ओरिजिनल श्लोक में जो कहा है ना कि ओ किंग द ग्रेट सेज नारद इंस्ट्रक्टर श्रीमद् भागवतम अनटू द अनलिमिटेडली पावरफुल व्यासदेव, है ना। तो उन्होंने हर एक को नहीं, मतलब व्यासदेव जी को कहा, हु मेडिटेटेड इन हिज डिवोशनल सर्विस अपॉन द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। क्योंकि वो मेडिटेशन उन्होंने भक्ति योगा में किया, जो हर एक इम्पर्सनलिस्ट के बस का नहीं है, वो एफलजल से आगे जा ही नहीं सकते। तो व्यासदेव जी ने जो मेडिटेट किया ना सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड पे भक्ति योगा में, तो उन्होंने भगवान की एक्टिविटी जो दिव्य उनकी लीलाएं हैं वो देखी। जी। फिर उनको ही सॉ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड डूइंग लीला एंड ऑल दैट। तो फिर द एब्सोल्यूट ट्रूथ ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर साबरमती, यही तभी उन्होंने ना 10 पहले नारद जी ने 10 चीजें बताई, उन्होंने 17-18 हजार वो चीजें। जी बाबा। जी, इसका सिंपल मतलब ये है ना कि भगवान का एक श्लोक जो है उसका अगर एक्सप्लेनेशन किया जाए और उसको समझाया जाए तो एक श्लोक में 1000 चीजें निकल आएंगी, है ना। क्योंकि उनका लेवल और हमारे लेवल में डिफरेंस भी तो इतना ज्यादा है कि उनकी किसी एक स्टेटमेंट को समझाने के लिए 1000 श्लोक निकल आएंगे, तब हम जाके उस बात को समझ पाएंगे कि उसका मतलब क्या है। नॉट ओनली दैट, ये बिल्कुल सही बात है। वो जो 1000 श्लोक जो निकालेंगे जी वो डिवोटीज जो कहेंगे वही सुनने लायक चीज है, वही बिल्कुल। काम की चीज है, बाकी रेस्ट इज ट्रैश, यस। है ना। ये भी वो उसके साथ में एक केवट है ना, हम्म। कैवियट है, क्या नाम है, मतलब जी। कि भाई जो है, मतलब तुमने बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल सही हम्म। कि भगवान ने तो मतलब बहुत एक ब्रीफ में व्यासदेव जी को दे दिया जी। चतुर्श्लोक खत्म। फिर वो उन्होंने क्या नाम है ब्रह्मा जी ने नारद को अब वो 10 प्रिंसिपल्स बताए हम्म, हैं जो कि, और नारद जो है ना उन्होंने व्यासदेव को क्या नाम है मतलब कहा क्या नाम, तो उन्होंने तो भाई किया है ना। बिल्कुल। तो ये बात है, बहुत सुंदर जी है। जी। जी जी, हम नहीं अला हो गया मेरे 3। पता नहीं है, बाकी हमने काउंट नहीं किया, आप देख लीजिए। हम्म। जी एक और पढ़ लेते हैं, खत्म करते हैं, जी 5 जी। बचे हैं, है ना। ओके हाँ, ये लास्ट चैप्टर का ही लास्ट है, और अगले बार से आप शाम को तुम पढ़ना है। ओके। यदुताहम त्वया पृष्ठो वैराजात पुरुष दिदम यथा हम्म। शीतदुपाख्यास्ते प्रश्नन्याश्च कृतनश्च शः। यदुताहम त्वया पृष्ठे वैराजात पुरुषादिदम यथा सीत दुपाख्यास्ते प्रश्न प्रश्नान्याश्च कृत स्नशः। जी। O Krishna, your question as to how the universe became manifested from the gigantic form of the personality of Godhead, as well as other questions, I shall answer in detail by explanation of the 4 verses already mentioned. हम देख हम्म। लें हम्म। यार, गजब की बात बता रहे हैं कि सृष्टि की रचना उन 4 श्लोक से कैसे निकालेंगे वो हम्म। परपोर्ट। As stated in the beginning of Srimad Bhagavatam, the great transcendental literature is the ripened fruit of the tree of Vedic knowledge. And हम्म। therefore, all questions that can be humanly possible regarding the universal affairs beginning from the creation are all answered in Srimad Bhagavatam. हम्म। The answers depend only on the qualification of the person who explains them. The 10 divisions of Srimad Bhagavatam, as explained by the great speaker Srila Sukdev Goswami, are the limitation of all questions. And intelligent persons will derive all intellectual benefits
from them by proper utilization. हम्म Thus ends the Bhakti Vedanta purport of the second canto, ninth chapter of the Srimad Bhagavatam, entitled Answers by Citing the Lord's Version. हम्म अब आप देखो यहाँ पर क्या नाम है, जी वो सुखदेव गोस्वामी अब लॉर्ड से उनसे बता रहे किंग से, भाई हम्म अब जो है वो मैं तुम्हें बताऊंगा सारे जो तुम्हारे सवाल हैं कि इस हम्म सृष्टि की रचना कैसे हुई, क्रिएशन कैसे हुआ, ये हम्म सारी चीजें अब मैं तुमको बता, बताऊंगा। है ना। हाँ हम्म जी जी, इससे एक चीज और समझ में आती है हम्म कि अगर आपके पास किसी चीज की जिज्ञासा है, तो अगर आप उसको प्रॉपर तरीके से श्रद्धा के साथ रखिए, तो आपको आंसर सारे क्वेश्चंस का मिलेगा। मैं तो भाई क्योंकि आई एम 20 years एल्डर टू यू, मे बी ट्वेंटी जी फाइव आई डोंट नो, जी बट जी यही पर मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि तुम लोग भाई पढ़ते रहना इसको, जी बिकॉज बिल्कुल। लाइफ एंड फ्रूट है। हम्म अंतिम सांस तक श्रीमद् भागवतम पढ़ते रहना बस। हम्म कि आज तो नौकरी कर रही हो, अब टाइम जैसे जी जब रिटायर हो जाओगी तो जी फिर मतलब फिर हमसे भी ज्यादा, हमारा तो अभी भी मन इतना सेंसेस में लगा हुआ है ना, हम्म भगवान ने आपके ऊपर तो ज्यादा बेटर कृपा की है ना। जी फिर आप जो है ना, मतलब यू मे बी इन ए बेटर पोजीशन टू कंट्रोल योर सेंसेस एंड बिल्कुल एंड टेक बेनिफिट ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। बिल्कुल जी। अब ये जो है ना, ये बड़ा, ये भागवतम जो है ना ऐसी सुंदर चीज है। हम्म और जो तुमने कहा है ना कि क्या नाम है, जी दैट विल रियली हेल्प हेल्प यू टू लीड लाइफ सब, बिल्कुल है कि नहीं, बिल्कुल जी है। हाँ, बिल्कुल। तो इसलिए जो ये है ना, ये थोड़ा कष्ट तो होता है भाई, कर्म है। अब आप का पूरा दिन जो है सैंडविच बिटवीन टू रीडिंग्स, है ना। यदि कष्ट नहीं है, ये तो सुखप्रद है। वेरी गुड। करते क्यों? मॉर्निंग की शुरुआत सोचिए, फाउंडेशन में ये सब चीजें जा रही हैं, तो ये तो बहुत ही खुशी की बात है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। यदि ये एक तरह से टाइम का बेटर यूटिलाइजेशन है, बेस्ट यूटिलाइजेशन वी कैन से। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म अरे हाँ, यस 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 यस। देखो ना, यही यही जो चीज है, ये बड़ा मतलब अति सुंदर है। लेकिन ये जी बार बार ये कह रहे हैं ना जी कि भागवतम की महिमा जो है, और फिर तो ये बहुत ज्यादा क्रम है। मतलब मेरे को तो जैसे यू कैन व्हेन यू विल फॉल इन लव विद भागवतम, देन हम्म यू विल फॉल इन लव विद द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ बिल्कुल गॉड। आपको फिर बिल्कुल। प्रेमा भक्ति मिल जाएगी, जो कि हम्म अल्टीमेट है। हम्म अल्टीमेट जो माधुर्य रस है ना, वो मिल जाएगा आपको। बिल्कुल यू सी, जैसे 5 तरह के रस हैं: जी। शांत रस, साख्य रस, हम्म वात्सल्य रस, और दास्य रस, और हम्म क्या कहते हैं, माधुर्य रस। तो उसमें हम्म सबसे ऊपर ये है शांत रस। क्या है? जहाँ पे हम्म कि आप एडमायर करते हैं लॉर्ड लॉर्ड, हम्म मतलब यू बिगिन फ्रॉम देयर, यू हम्म एडमायर द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ हम्म लॉर्ड लॉर्ड, और उनकी वो जो है साख्य रस में यू ही बिकम्स योर फ्रेंड। हम्म दास्य रस में क्या नाम है, व्हेन यू बिकम्स हिज, मतलब टोटली डेडिकेटेड सर्वेंट लाइक हम्म हनुमान जी। हम्म एग्जाम्पल जो दास्य रस का जो बेस्ट एग्जाम्पल है, वो हम्म जो है वो हनुमान जी के बारे में है। हम्म और साख्य रस का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अर्जुन के बारे में है। तभी हम्म उन्होंने भगवत गीता में कहा हम्म कि मैं ये ये ज्ञान तुम्हें क्यों दे रहा हूँ, बिकॉज हम्म यू आर ए डिवोटी एंड यू आर ए फ्रेंड, हम्म है ना। और हम्म हनुमान जी जैसा डिवोटी जो था वहां पे, जब जब महाभारत हो रहा था, उनके झंडे के ऊपर बैठे हुए थे। हम्म लोगों ने कहा भी कि भैया जिस जिस बैटल में क्या नाम है लॉर्ड श्री कृष्णा खुद हों, और हनुमान जी जिसके क्या नाम है वो प्रोटेक्ट कर रहे हों, तो उसको हम्म कौन हरा सकता है। हम्म तो ये दास से रस वाली बात आ गई। और फिर क्या था, क्या नाम है, साख्य रस, ये फिर क्या नाम है? वात्सल्य रस, हाँ। वो जो है यशोदा जी, और क्या नाम है उनका है वात्सल्य रस। वेर वेर द वेर द पीपल कंसिडर हिम, मतलब देर आर पीपल हु कंसिडर हिम एज ए चाइल्ड, एज देयर। अब उस तरह का वात्सल्य था उनमें। नारद जी, अरे वो ये नंद महाराज, और क्या नाम है यशोदा जी, और बाकी जो एल्डर गोपियां थी, जो एल्डर गोपियां थी, जो उनके साथ में क्या नाम है मतलब खेलती रहती थी।
ताली हम्म बजा नचा रही हैं उनको, कह रही ताली हम्म बजा करके, या है ना, तो इस तरह का काम करती थी। जैसे जैसे अपने चैतन्य महाप्रभु बचपन में वो रोते थे, क्या नाम है, रो रहे होते, तो जो लड़कियां जो हैं जो अगल बगल की पड़ोसन थी, वो आकर के जैसे ही भगवान का नाम लेती थी, हरी हरी हरी, तो चुप हो जाते थे। हम्म तरह का भाव जो है वात्सल्य रस, और फिर माधुर्य रस जो अल्टीमेट है गोपियों का, हम्म, जो तुमने कई बार कहा है ना कि वो वाला लव जो है ना, वो दैट इज वेरी, वो हर एक नहीं समझ सकता। बिल्कुल इसलिए बिल्कुल मना है कि आप कैंटो में जाके रास लीला आपकी समझ में नहीं आएगी। नहीं आएगी। हाँ, वो जो है ना, वो बहुत ही, उसके लिए बहुत हायर लेवल पे पहुंच जाना पड़ेगा, तब आपको आएगी। बिल्कुल। तो ये जो है ना, कि अगला चैप्टर अब हम लोग करेंगे शाम को स्टार्ट है। जी जी तो अब आज अभी खत्म करते हैं जी शाम जी। को पढ़ना है। हम्म। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, थैंक यू।